शासकीय ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय रीवा की तरफ परिवार की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रमुखतः आज हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जेपी पचौरी जी, उनके विधिवत स्वागत के लिए हमारे डॉक्टर एसपी शुक्ला जी आएंगे। मैं उनको आमंत्रित करूंगा। इससे पहले मैं आपसे आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि यूजीसी नैक के परामर्श स्कीम की तरह से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और पूर्व में भी हमने कई वेबिनार नैक पर विभिन्न क्राइटेरिया पे कराए थे। पिछली बार क्राइटेरिया नंबर 2 पर सर को सुनना था, लेकिन सर की अत्यधिक व्यस्तता के कारण हम उनका लाभ नहीं ले सके और हम भी हार नहीं माने। ये सोचे थे कि जब भी खाली होंगे तो सर का वक्तव्य जरूर हम सुनेंगे। और ये आज क्राइटेरिया नंबर 2 पर ये बातें होंगी और इसके बाद फिर से कुछ एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद फिर से सारे क्राइटेरिया पर अलग अलग बात होगी। आप सबसे ये भी निवेदन है कि आप अपने माइक अनम्यूट ही रखिएगा। कार्यक्रम जैसे ही वक्तव्य सर का खत्म हो जाएगा, उस समय जो आपकी क्वेरी होगी, आप अपना माइक अनम्यूट करके आप अपनी बात कह सकते हैं, अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। मैं अपने ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय रीवा के IQAC के चेयरमैन डॉक्टर एसपी शुक्ला जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर जेपी पचौरी के परिचय के लिए उन्हें हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी सर ने बताया कि यूजीसी परामर्श स्कीम के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस हु आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर नैक एक्रेडिटेशन, बहुत सारी संस्थाएं जो नैक मूल्यांकन की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए खास तौर पे ये कार्यक्रम रखा गया है। और आज के जो हमारे वक्ता हैं बहुत अनुभवी वक्ता हैं और हमको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी का, जितनी भी संस्थाएं इसमें भाग ले रही हैं, जो मेंटी इंस्टीट्यूशंस हैं, द इंस्टीट्यूशंस दैट आर गोइंग टू गेट एक्रेडिटेड बाय नैक, वो संस्थाएं जो नैक से एक्रेडिटेड होने वाली हैं, उनके प्रिंसिपल्स, रिस्पेक्टेड सम्मानीय प्राचार्य और सम्मानीय IQAC कोऑर्डिनेटर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इट इज माय प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस you to our eminent speaker of today, Dr. J.P. Pachauri, who had been professor and head Department of Sociology and Social Work, Hemoti Nandan Bahugura, Garhwal Central University, Uttarakhand. I would like to introduce you to Dr. Pachauri. Dr. Pachauri had been an eminent scholar of his stream with 40 years of teaching experience and 37 years of research experience. He has rendered his services as lecturer, reader, professor of sociology at Hemoti Nandan Bahugura, Garhwal University, Uttarakhand. He has been visiting professor to Doon University since August 2019. Dr. Pachauri has into his credit Professor LP Vidyarthi Award for his academic contribution in the field of social science. He has served the different academic bodies during his teaching tenure. Dr. Pachauri has several major research projects and he has also offered consultancy to Uttaranchal Jal Vidyut Nigam Mobile Health Clinic Project, Alaknanda Hydro Power Project and Dosri Hydro Power Project. Dr. Pachauri has 30 years of administrative experience. He has offered his services as DSW, Dean Students Welfare, Garhwal University, Dean School of Humanities and Social Science, HNB University, Dean Faculty of Arts, member ASA Monitoring Group, Proctor, coordinator of different cells and committees. He has been coordinator of steering committee, NAC. He has ample of experience of NAC assessment and accreditation of several institutions. He has been associated as chairman
member coordinator, member to NAAC peer team, assessing and accrediting more than 100 institutions all over the country. He has been appointed review committee member by NAAC and visited academic staff college, University of Calicut, Guru Nanak Dev University, Amritsar. He has, into his credit, 6 reports, publication, 4 books, and more than 55 research papers in reputed journals of high credit. It is our privilege to have Dr. Pachauri with us to share his experience and expertise on second criteria of NAAC, teaching, learning, and evaluation. As you all know, that this is the criteria that covers the maximum weightage for NAAC institutions. 350 marks they can have into their credit if they are preparing well. With most respect, with most reverence and honor, I would like to invite Dr. Pachauri to deliver his experience and expertise with the institutions that are going to prepare for NAAC accreditation. Dr. Pachauri, sir. Thank you, Professor Shukla, sir. The Honorable Principal of the college, Dr. Arpita Avasthi ji, respected convener of the National Webinar and Coordinator IQAC, Dr. S.P. Shukla ji, co-convener, Dr. Mahesh Shukla ji, who is not only the co-convener, he is just like my younger brother, and friend also, friend, philosopher, and we are in touch since long period. And he is the person who was continuously compelling me to have some interaction with you. All the respected members of IQAC cell, all the respected faculty members, all the principals, those who are today associated with this webinar, and respected all the participants. First of all, really, I am very sorry that I could not participate in your earlier program, which was organized by your college due to some unavoidable reasons. Actually, I was busy actually on that day. Later on also, Dr. Shukla asked me to have my interaction, but I could not find time actually. But since last 15 or 20 days, continuously he was asking, he was rather compelling me, he was hammering me that, you have to come, you have to deliver the lecture. Somehow you have to spare some time. Time was not the constant, but I was busy in some other activities, that's right. So first of all, please, I'm really very, very sorry that actually I could not participate on that program. It was a very wonderful program, I came to know, because one of my friend, actually Dr. Cholke, was also present in that webinar. So really, that was a wonderful program. I missed that program. I'm very much thankful to really Professor Shukla. Just I told you that he is not, he is professor in your college, but he is very close to me, and he is just like my younger brother. So thank you, Professor Shukla, for inviting me and giving me this opportunity to share my ideas with you. Definitely, long back, as you know, I have visited Riva. Once Professor Shukla organized a national seminar long back. In that seminar, he invited me also, and at that time I participated in that seminar. And another time I came for a PhD viva also in the Riva University. At that credit was also Dr. Shukla, Mahesh Shukla. He was the force behind that. He somehow, you see, manipulated the things in the university so that he was able to invite me. And third time, actually, I visited Riva in the university, in the NAAC peer team. I was coordinator at that time, the peer team. So I was Abdesh Pratap University, Riva, I visited. At that time also, Professor Shukla came to me and meet me. So this is 3 times I have visited Riva. And 4th time I am sharing my ideas with you to all the, not only the Riva people, but all those persons, those who are associated with different nearby Riva places also. First of all, I would like to congratulate Principal, IQAC, and all the members of TRS has been giving me this
the responsibility, not me, the responsibility was given by the UGC to you, to the college, by the UGC has given you under the Paramarsh scheme as a mentor institute. Really, it's a credit to the TRS college. And so that the whole IQAC and all the faculty members deserves congratulations for that. TRS, the government college, is a very big college, we all know. That will be helpful to all the anti-colleges, those who are associated under this Paramarsh scheme. So this college will definitely serve as a pioneer institute for them, and that will be helpful to other colleges, those who are going to present there, those who are going for the NAC accreditation. I do not consider myself as an expert, actually. I feel myself, I am just a learner. I want to be a learner only. But this time I will not be able to learn, because this interaction is only, of course it is a two-way interaction, but most of the interaction is my lecture only. So you see, the teaching, learning, I'm not expert in that. All of you are having very good knowledge, very knowledgeable person, experienced person. So I don't want to say anything about that. Anyway, whatever little knowledge, whatever the little experience I'm having as a teacher or as a NAC peer team member, I would like to share my experience with you, as I am sure that that will be helpful to all the colleges, particularly those who are today associated in the preparation of their report, SSR. As Professor Shukla pointed out, that I'm having some more exposure only. This is the only difference actually between you and me. In other fields, you may have more knowledge than me, but as Professor S.P. Shukla sir was telling me about when he was reading my biodata, that I have visited more than 100 colleges and universities. I was in the different universities, central universities also, state universities also. You see, government colleges also, except Sikkim. I have visited all the states, and I have learned a lot of things actually from these colleges. When I was visiting all these colleges, actually, when you go to the college, you learn a lot of things actually from those colleges, because every college is a unique college. Unique in the sense because geographical location is different. They are having different environment. They are having different persons. So when you go, when you meet, when you interact, when you, as a member or member coordinator or as a chairman to any college, for the evaluation, for the in the peer team visit, so you learn a lot of things also, and that is always helpful to a person. And many of the best practices which actually when I learned from all these colleges, actually that those were implemented by me in my university also. And it's true that I was a coordinator in my university when my university went for the second round for the NAC accreditation. And fortunately, we got also A grade of my university. The NAC has given me a lot of opportunity actually to learn a lot of things. As we all are aware that at this time, this COVID-19 pandemic situation is entirely different. And this is really a concern for all of us. Widespread panic is there. Increasing anxiety is also there. And a lot of stress is there. All the individuals and all over the world, they are having a lot of stress. But this is the only mode. This is the only mode by which we can interact. So now you see most of the colleges, universities are having webinar. Earlier, I was not very comfortable, I tell you, because I am a very old age people, not old age person, but I feel myself that actually I'm not very much familiar actually under this new system. But I also learned a lot of things, how to prepare, how to deliver, how to connect, and how to, you see, on this another platform which nowadays is available. By organizing such type of activities, you have done a great job. At least
we are interacting through online mode of learning. Although online mode of learning is not actually, in my opinion, all the time, that is not beneficial to all the teachers or the students. But anyway, this is the only mode which is available nowadays, because there is no other mode actually available because of this pandemic situation. So national, as you are all of you are aware, that National Assessment and Accreditation Council, NAC, was established in 1994, and the headquarter of the NAC is at Bangalore. You see, that is an autonomous institution. That is an autonomous institution of the UGC. UGC chairman is the president of the governing body, and chairman of the executive council is, you see, nowadays that has been nominated by the president at present. Professor Chauhan is the chairman of the executive body, executive committee, executive council of the NAC, and Dr. Sharma is the director. And they are having a different persons actually in the NAC. They are having senior most person is the advisor, and director is there. He is responsible for all these things. Another person, somebody is talking, Dr. A.K. Pandey, who is? Hello. Dr. Okay. A.K. Pandey ji, please. Yes. Video off kar lijiye. No, it's okay. Okay, fine. There is no need. Video is all right. But he was discussing, he was talking to something. Okay, anyway. So you see, they are having, the NAC is having a administrative setup. Director, the chairperson, they are having advisors, they are having deputy advisors, they are having assistant advisors. I am fortunate that I have heard all of them. Earlier, Lata Pillai was there, now she has retired. So now there are directors. Ganesh is director nowadays. You see Sham Sundar is director, and Patil is director. Some other persons are five, 6 persons are director. No, advisors are there. Others are deputy advisors, and some of the persons are assistant advisors also. So they are having the system. In the new, you see, policy, everything is now different. As I am associated, still associated with the NAC since 2004. So almost 16 years continuously I am associated with the NAC. So now I have been associated with the other type of, you see, the ways by which the NAC was doing his job. So, but now the system is totally changed. And when the Professor D.P. Singh was the chairperson, the director of the NAC, under his leadership, actually the total criterion by everything has been changed by the NAC. The new format is there, which is available on the website. So I don't want to go in detail about all those things. We all know that NAC is having 7 criteria are there. Okay, curricular aspect is there. Second is teaching, learning, and evaluation. Third is research, innovation, and extension. Fourth is infrastructure and learning resources. Student support and progression. Sixth is governance, leadership, and management. And seventh is institutional values and best practices. I have given the task by Professor Shukla to share my views about the second criterion, which was not covered by me. That is teaching, learning, and evaluation. Professor S.P. Shukla rightly pointed out this is very important actually criteria. Why it is important? Because it is having 350 marks. You see, so this is really a very important for all the colleges. Very important criteria. Let me break up this actually, the criteria. I think later on, Professor Shukla, Professor Mahesh, later on, if anybody is having any query or any doubt, actually, we will share later on. Na? Okay? Right? Right? Yeah, yes, right. Yes, sir. Okay. Okay. Now let me come to the point. I will tell you some of the, you see, how to prepare the general things also I will share with later on. लेकिन अभी मैं आपसे केवल ये बात करना चाहूंगा
I can be in English or in the bilingual, no problem. बाइलिंगुअल सर करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि Okay, वो okay, सर, okay, हाँ, okay. एक्चुअली Okay, fine. एक्चुअली सर ये थोड़ा सा हिंदी बेल्ट है ना, तो दे आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, मेरे को हिंदी अच्छी आती, हिंदी नहीं तो सर, मेरी मदर टंग है, नो प्रॉब्लम, हाँ, नहीं मुझे सर। तो अच्छा लगेगा, है ना। सर थैंक यू, इंग्लिश में सोचना पड़ता है तब बोलना पड़ता है, हिंदी अपने आप निकलती है। ओके ओके, राइट। तो ये जो टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन वाला क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर कॉलेजेस के लिए। अभी प्रोफेसर शुक्ला सर बोल रहे थे ना, 350 इसका वेटेज, मार्क्स का वेटेज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें इसको अगर आप देखें तो ये 7 सब क्राइटेरिया में डिवाइडेड है, राइट। जो फर्स्ट इसका है स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल। अंडर दिस क्राइटेरिया, अगर इस क्राइटेरिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल, जिसके 30 मार्क्स हैं। दूसरा है कैटरिंग टू स्टूडेंट डाइवर्सिटी, इसके 50 मार्क्स हैं। अभी मैं आऊंगा एक एक पॉइंट पर, ये इंपॉर्टेंट है, इनको समझना भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए जाने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आपको अपनी रिपोर्ट में इसको शामिल करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार देखिए होता क्या है, बहुत सारी चीजें हमारे कॉलेजेस के पास होती हैं लेकिन हम उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। कई बार हम डॉक्यूमेंटेशन चीजें करते हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखते हैं, है ना। तो नेक ने एक काम तो बहुत अच्छा किया है कि लोगों को ये सिखा दिया कि डॉक्यूमेंटेशन करो भाई, बिना डॉक्यूमेंटेशन के काम नहीं चलेगा। आप जानते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो मोर नाच रहा है लेकिन मोर को जो नाचता है ना उसको पता भी तो लगना चाहिए कि कहाँ आप उसको डॉक्यूमेंटेशन में प्रेजेंट करने की जरूरत है। तो जो भी आप काम करें कॉलेज में, किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी करें, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर जरूर रखिए। दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, क्योंकि हर डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेक के लिए और आपके लिए आगे के लिए भी होता है। ओके, तो जो पहला जो मैंने बताया आपका स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल, सेकंड है कैटरिंग टू स्टूडेंट डाइवर्सिटी, थर्ड है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फोर्थ है टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी, पांचवा है इवेल्युएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स, और छठा है स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग। ओके, ये इसके आउटकम्स हैं, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग। और इसके अलावा इसमें है आपका स्टूडेंट परफॉर्मेंस लर्निंग आउटकम्स और स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। दीज आर दी 7। दोबारा से मैं फिर बताता हूं आपको। पहला है स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल, इसमें हम छात्रों के एनरोलमेंट से संबंधित जानकारी और उसका प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो इसका सब पॉइंट है वो है स्टूडेंट की डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी से मतलब होता है वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस स्टेट से हैं, अलग अलग स्टेट, अलग अभी डिटेल में मैं बात करूंगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचिंग की प्रोसेस क्या, टीचिंग की कौन सी प्रोसेस है, लर्निंग की कौन सी प्रोसेसेस हैं। टीचर्स प्रोफाइल एंड क्वालिटी, टीचर्स का प्रोफाइल क्या है, कितने लोग पीएचडी हैं, कितने लोग इसमें, उनकी क्वालिटी ऑफ टीचर्स क्या है। इवेल्यूएशन की प्रोसेस क्या है, मूल्यांकन करने का तरीका क्या है, उसमें कोई रिकॉर्ड क्या है, इंटरनल अपने लेवल पे या नहीं किया है। बहुत सारे कॉलेजेस तो उसी को फॉलो करते हैं जो यूनिवर्सिटी लागू करती हैं। स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या रही है। और लास्ट में वो है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, ये भी 50 नंबर का है, जो आप जब आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो वो अपना स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे SSSS जिसे हम बोलते हैं वो भी किया जाता है। अब मैं बात करता हूं, इसके 2 पॉइंट हैं, आपको ये याद रखना चाहिए कि अंडर दिस वी आर हैविंग जो मैट्रिक्स हैं 9 क्वालिटेटिव मैट्रिक्स हैं और 14 इसमें क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स हैं। सेकंड क्राइटेरिया के अंतर्गत 9 जो हैं वो गुणात्मक हैं, क्वालिटेटिव, ओके, और 14 जो हैं वो है क्वांटिटेटिव। तो ये टोटल 23 मैट्रिक्स हैं इसकी। अर्थात जो आप रिपोर्ट बनाते हैं, जो
क्वांटिटेटिव का मतलब होता है इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को उसके अंतर्गत अपलोड करना होगा आपको। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उसके आधार पर उसका इवैल्यूएशन होगा। लेकिन जो नेक टीम आती है वो क्वालिटेटिव वे में आपकी जो चीजें लिखी गई हैं वो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत 9 हैं। 9 ऐसे सब पॉइंट्स हैं जिन पे कि आपको अपना क्वालिटेटिव गुणात्मक रूप से उसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके डॉक्यूमेंट्स वो जब टीम आती है तब जब विजिट करती है तो उसका वेरिफिकेशन कॉलेज में करेगी। ओके, वो और चीजों का भी वेरिफिकेशन करती है, लेकिन वो जो 14 में बता रहा हूं आपको, ओवरऑल को पता है आपको टोटल रिपोर्ट में जो मैट्रिक्सेस हैं वो 121 हैं, होल मैट्रिक्सेस टोटल उसमें 121 है। लेकिन मैं यहां पर केवल इस क्राइटेरिया में फोकस कर रहा हूं आपको। इस क्राइटेरिया में जैसे मैंने अभी आपसे बताया 9 क्वालिटेटिव है और 14 जो है वो क्वांटिटेटिव है, टोटल 23 है। अब एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेट मी कम टू फर्स्ट क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्योंकि कम है इस पर मैं बात करूंगा आपसे। ओके, ये अंडर क्राइटेरिया 2, ये इवेल्युएटेड बाय द पीयर टीम। ये पीयर टीम जब विजिट करती है कॉलेज की और आपने जो रिपोर्ट में लिखा होता है उसको ये पीयर टीम इवेल्युएट करती है, देखती है, उसके वेरिफिकेशन मांगेगी आपसे। इसमें जो 2.2 जो पहला पॉइंट, दूसरा जो क्या है 2.2 में क्या था, कैटरिंग टू स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी। ये ध्यान रखिए, अभी मैं आपको बताता हूं। जो क्वांटिटेटिव डेटा है 2.1, ओके, वो था स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल। ये केवल क्वांटिटेटिव है, इसके अंदर कोई क्वालिटेटिव डेटा नहीं है, ये क्वांटिटेटिव है। इसलिए मैंने यहां बात की है 2.2 के अंतर्गत। 2.2 जो है वो है कैटरिंग टू स्टूडेंट डाइवर्सिटी, स्टूडेंट की डाइवर्सिटी के अंतर्गत यहां बात है। और 2.2 में जो क्वालिटेटिव मतलब जो रिपोर्ट में आपको क्वालिटेटिव लिखना है उसके अंदर 2.2.1 है। और 2.2.1 में क्या है, स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर एडवांस लर्नर्स एंड स्लो लर्नर्स। तो 2.21 में आपको ये बताना है कि क्या आपके कॉलेज में आपके द्वारा छात्रों के लिए विशेष रूप से जो एडवांस लर्नर्स हैं और जो स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए क्या विशिष्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ओके, देखिए कॉलेज में वी आर हैविंग दोनों तरह के हमारे पास छात्र होते हैं, एडवांस लर्नर्स भी होते हैं और स्लो लर्नर्स भी होते हैं। एडवांस लर्नर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं और स्लो लर्नर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं। यहाँ 2.2.1 के अंतर्गत जो कैटरिंग टू डाइवर्सिटी नीड, केवल एक ही है जो क्वालिटेटिव बात करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर उस बात को करना है और इसके लिए आपको अपने पास डॉक्यूमेंट्स प्रूफ रखना है। जब पीयर टीम आएगी वो पूछेगी आपसे कि एडवांस लर्नर्स के लिए आप क्या कहते हैं। आपने लिख दिया कि हम एडवांस लर्नर्स को एक्स्ट्रा बुक्स देते हैं, तो उसका प्रूफ चाहिए भाई। क्या देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। नॉर्मली कॉलेजेस लिख देते हैं कि हम टाइम टेबल में लगाते हैं, तो भाई टाइम टेबल में उसकी व्यवस्था कहाँ है, कौन से दिन है, कौन से टीचर को आप डिप्यूट करते हैं। स्लो लर्नर्स के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम की बात करते हैं, तो स्लो लर्नर्स के लिए आपने क्या किया है, उस कौन सी स्कीम है, क्या उसके लिए कुछ अलग से आप टाइम देते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। पहले तो यह है कि हाउ, क्या मैकेनिज्म है आपके पास एडवांस और स्लो लर्नर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कौन सा तरीका है, कौन सी मशीनरी है, कौन सा तरीका आप अपनाते हैं। तो आप अपने तरीके अपना सकते हैं। क्या तरीका है आपका, अपने तरीके भाई स्लो लर्नर्स क्या है, क्लास टेस्ट के आधार पर अपना सकते हैं आप। टीचर्स जो है इंडिविजुअली दे कैन आइडेंटिफाई कि कौन एडवांस लर्नर है मेरी क्लास में, मेरे पेपर में, और कौन जो है इसमें स्लो लर्नर्स है। तो क्वालिटेटिव मैट्रिक्स के अंतर्गत 2.2 में जहां कैटरिंग टू डाइवर्सिटी स्टूडेंट डाइवर्सिटी है, उसके 2.2.1 में स्लो और एडवांस लर्नर्स की हम बात करेंगे, जिसको टीम आकर के देखेगी। मैं यहां पर केवल अभी क्वालिटेटिव डेटा की बात कर रहा हूं। ओके, दूसरा है 2.3। 2.3 में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत इसमें टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस आपकी क्या है। अब इसमें 2.3 जो पॉइंट है, वैसे भी आप देखिए
अंडर 2 कैटेगरीज जो मैंने 7 क्राइटेरिया आपको बताए थे ना, पहला 2.1 है, दूसरा 2.2 है, ये आ गया 2.3। तो 2.3 है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत जो आपको क्वालिटेटिव में लिखना है वो है 2.3.1 वाला। उसमें है स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स, छात्रों के द्वारा छात्रों पर केंद्रित कौन से पद्धतियां हैं, छात्रों से संबंधित पढ़ाने की पद्धतियां आपकी क्या हैं, ये इसकी बात करता है। और इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें अगर आप वेबसाइट देखेंगे उसमें दिया हुआ है। अब आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, पार्टिसिपेटिव लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेथोडोलॉजी आपकी क्या है, लर्निंग को बढ़ाने के लिए आपके द्वारा छात्रों पर केंद्रित लर्निंग की क्या नई तकनीक आपने खोजी है। आप देखिए आजकल तो कोविड-19 पेंडेमिक में तो सारे लोगों ने नई तकनीकी खोजी हुई है। ओके, पार्टिसिपेटिव लर्निंग भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, आप जो है और चीजों पे भी बात करते हैं, यूट्यूब अब में भी डाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कोई एक्सपीरियंस बच्चे उनकी जो है लर्निंग, उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात करना, उनको प्रॉब्लम देकर के सॉल्व करने की बात। तो यहाँ पर 2.3.1 में आप स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स का जिक्र करेंगे। इसके बाद इसमें है 2.3.4, इसके अंतर्गत यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में केवल 2 सब क्राइटेरिया है, जैसे आप कह सकते हैं, सबके भी सब किसे आप बात कर सकते हैं। उसमें दूसरा क्या है, प्रिपरेशन एंड एडहेरेंस टू एकेडमिक कैलेंडर एंड टीचिंग प्लान्स बाय द इंस्टीट्यूशन। 2.3.4 के अंतर्गत आपको यह जो आपका एकेडमिक कैलेंडर, देखिए 2 चीजें होती है, एक होता है यूनिवर्सिटी का कैलेंडर, यूनिवर्सिटी के कैलेंडर के आधार से, एक होता है कॉलेज का अपना कैलेंडर। दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। कई बार होता क्या है, कई बार हम देखते हैं सिचुएशन प्रत्येक कॉलेज की अलग होती है, तो आप अपना एकेडमिक कैलेंडर भी बना सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर योर एकेडमिक कैलेंडर। कुछ चीजों के द्वारा यूनिवर्सिटी को फॉलो किया जाता है, कुछ शासन के द्वारा दी गई चीजें फॉलो की जाती है, लेकिन जहां कॉलेज सिचुएटेड है उस कॉलेज के हिसाब से आप एक वर्किंग कैलेंडर अपना बनाते हैं, जिसमें हम उन चीजों को भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं जो यूनिवर्सिटी ने या मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो दी है, और उसमें जो कितना एडहेरेंस है, कितना आप पालन करते हैं, कितना चीजें को आप जो है उसके हिसाब से चलते हैं। टीचिंग प्लान्स, कैलेंडर एंड टीचिंग प्लान्स। अब टीचिंग प्लान, टीचिंग डायरीज बनाना, टीचिंग प्लान्स बनाना, कॉलेज के टीचर्स को इंस्ट्रक्ट करना, भाई कि आप बनाइए अपना, किस दिन आपने क्या पढ़ाया, तो ये सब चीजें उसमें आएंगी इसके अंतर्गत। ओके, अब 2.4, अब देखिए 2.4 आपको याद होगा क्या था। 2.4 में चीज थी टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी। तो टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी केवल क्वांटिटेटिव में जाएगा, वो यहां नहीं है। क्वांटिटेटिव में जाएगा, गुणात्मक वाले पक्ष में जहां टीम को इवेल्युएट करना है, यहाँ 2.4 का कोई जिक्र नहीं कर रहा, वो ब्लैंक रहता है। यहां बात करेंगे हम 2.5 की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव में। 2.5 में क्वालिटेटिव में जो है वो है इवेल्युएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म। मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है और आपने कुछ सुधार किए हों मूल्यांकन में, तो वो इसमें उल्लेखित करने हैं। इसके अंतर्गत 4 पॉइंट हैं। ओके, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, ये 4 इसके अंतर्गत हैं। इस क्राइटेरिया, इस सब क्राइटेरिया के अंतर्गत इवेल्युएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स में जो क्वालिटेटिव के अंतर्गत है, तो पहला है 2.5.1, उसमें क्या है, कंटिन्यूअस इंटरनल इवेल्युएशन, लगातार मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन। क्या कॉलेज लगातार आंतरिक मूल्यांकन करता है? अगर करता है तो उसमें क्या पद्धति है आपकी, इसके बारे में आपको जिक्र करना है। ओके, दूसरा इसमें है 2.5.2 में आंतरिक असेसमेंट की क्या मैकेनिज्म है, तरीका क्या है। आप टेस्ट लेते हैं, आप उनको असाइनमेंट देते हैं, आप किस तरह से उसको असेस करते हैं, मैकेनिज्म क्या है। फिर जो आप असेसमेंट देते हैं तो क्या उनकी जो ग्रीवेंस है, नेक्स्ट उसमें आ जाता है आपको मैकेनिज्म 2.5.3 के अंतर्गत क्या है
कि वो तरीका बताइए जो परीक्षाओं से संबंधित क्या मैकेनिज्म है। अगर किसी की ग्रीवेंस है, किसी के नंबर कम आए, कोई नंबर सेटिस्फाइड नहीं है, किसी का जो है क्वेश्चन जो है मान लीजिए आंसर शीट प्रॉपर इवेल्युएट नहीं हुई, क्या रिवेल्यूशन सिस्टम है, क्या दोबारा से वो री एग्जामिनेशन सिस्टम है, क्या बैक पेपर सिस्टम है, उसकी क्या प्रक्रिया है। लड़का कोई कंप्लेन करता है ग्रीवेंस, कॉलेजेस में देखिए, कॉलेज ये कुछ पार्ट जो है कॉलेज का होता नहीं है, आई टेल यू, ये ज्यादातर पार्ट जो है। लेकिन यहाँ क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस वाला पार्ट यू कैन डेवलप योरसेल्फ। आप अपने आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति के आधार पर आप अपने डिब्यूट कर सकते हैं। सेमेस्टर सिस्टम में तो आपको बताया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी 60-40 का रेशियो कहीं रखती है, कहीं 30, कहीं 70-30 का है। तो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में वो अलग अलग इवेल्यूएशन उसको जोड़ने का एक तरीका है। आपके यहाँ क्या सिस्टम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो है मैकेनिज्म, जो उन मतलब छात्रों की परीक्षा से संबंधित जो ग्रीवेंसेज है, जो उसकी शिकायतें हैं, जो उसकी परेशानियां हैं, उसको डील करने का तरीका क्या है। नॉर्मली कॉलेजेज में क्या होगा, नॉर्मली कॉलेजेज में क्या होगा, चिट्ठी आएगी, आप उसे फॉरवर्ड करके यूनिवर्सिटी भेज देंगे, ओके। लेकिन इतने से काम नहीं चलता, आपको परस्यू करना पड़ेगा कि इसका हुआ क्या। उसको भेजना ही सफिशिएंट नहीं है एक्चुअली। एक तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये देखना होगा कि भाई ये छात्र की जो ग्रीवेंस हमने जो इकट्ठी की थी, चाहे वो उसकी मार्क्स के रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी कॉपी के वैल्यूएशन के बारे में हो, या और कोई भी करेक्शन हो। कई बार रोल नंबर गलत आ गया, उसके नंबर नहीं चढ़े, किसी प्रैक्टिकल के नंबर नहीं चढ़े, किसी के प्रैक्टिकल दिया था लड़के ने, आपने वेरिफिकेशन करके फिर भेजा यूनिवर्सिटी के पास, तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी देयर। तो आपका क्या, अब छात्र क्यों जाएगा उस चीज के लिए। अगर छात्र जाता है तो लॉट ऑफ उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी लेवल पर, बाबू नहीं उसकी सुनता है इंडिविजुअली केस को। तो कॉलेज लेवल पर जो आपका एग्जामिनेशन सेल है, जो आपका एग्जामिनेशन का डिपार्टमेंट अपने कॉलेज के लिए आपने बनाया हुआ है, वो क्या प्रक्रिया अपनाता है इसके लिए, ये क्वालिटेटिव मैकेनिज्म के अंतर्गत आपको यहाँ पर इसमें बात करनी होगी। 2.5.3 में, 2.5.4 में ये सब इवेल्युएशन और प्रोसेस और उसके रिफॉर्म्स के बारे में है। फिर यह है कि एडहेरेंस टू द एकेडमिक कैलेंडर फॉर कंटिन्यूअस इंटरनल इवेल्युएशन। कंटिन्यूअस इंटरनल जो इवेल्युएशन है उसका एक जो आपने पहले से कैलेंडर बनाया हुआ है कॉलेज ने, उसकी कितनी एडहेरेंस है, क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। आपने देखा कई बार मान लीजिए स्ट्राइक हो गई, कुछ और बात हो गई, कुछ और चीज हो गई, हम नहीं करा पाए इवेल्युएशन, तो आपने क्या तरीका अपनाते हैं, कैसे कराया आपने उस चीज को। तो हम उस चीज में देयर आर सर्टेन थिंग्स। कई बार क्या होता है कि हमारी सीमाओं से बाहर परिस्थितियां अगर क्रिएट हो जाएं तो वहां पर मान लीजिए कैलेंडर फॉलो नहीं, मान लीजिए इलेक्शन आ गया, आपका कॉलेज उसमें घुर गया, तो कहां से कराएंगे आप। तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ जाती हैं। लेकिन वहां कहने का मतलब यह है कि भाई उसका पालन होता है नहीं हो रहा है तो आप लिखिए उसको, बेशक उसमें लिख देना चाहिए कि भाई इसलिए इस साल ये पालन नहीं हुआ और साल में हमने ये पालन किया। देन कम टू द छठा जो पॉइंट था वो था आपका 2.6 क्वालिटेटिव के अंतर्गत, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम्स। छात्रों की परफॉर्मेंस क्या है और लर्निंग के आउटकम्स क्या निकले हैं। ये जो क्राइटेरिया है 2.6 वाला, इसके अंतर्गत दो भाग हैं इसके क्वालिटेटिव में। 2.6.1 है, इसमें आपको बताना है कि जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की वो वेबसाइट पे कम्युनिकेट आप करते हैं कि नहीं करते। टीचर्स और स्टूडेंट को भी कम्युनिकेट होनी चाहिए। यहाँ पर ये NAAC ये अपेक्षा करता है कि जो प्रोग्राम के आउटकम्स हैं, चाहे कोर्स के आउटकम्स हों, चाहे पेपर के आउटकम्स हों, सब्जेक्ट के आउटकम्स भी होंगे, फिर आपके कोर्स के आउटकम्स होंगे, ओके, पेपर अपने जो इंडिविजुअल पेपर पढ़ाता है आदमी उसके आउटकम्स होंगे, उसको डिस्प्ले करना, उसको बताना वेबसाइट पर, उसको बताना कि भाई ये है पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ये थे, इनकी आउटकम ये है, और वो कम्युनिकेट होना चाहिए। दैट शुड बी वेबसाइट के साथ साथ दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू टीचर्स, पर्टिकुलर टीचर को भी हमें बताना है और स्टूडेंट को भी बताना है, राइट। इसके अलावा एक और इसमें है दूसरा वाला 2.6.2, यह अटेनमेंट ऑफ प्रोग्राम आउटकम्स आर इवैल्यूएटेड बाय द इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें क्या है कि जो आउटकम है
जो आया रिजल्ट जो बच्चों के हैं, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है, क्या इंस्टीट्यूशन उसको इवेल्युएट करता है अपने स्तर पर कि भाई मेरे स्टूडेंट्स का, मेरे जो बच्चे थे बीएससी के, बीए के, या पर्टिकुलर पेपर के, या पर्टिकुलर टीचर के, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसके आधार पर क्या हम उसको इवेल्युएट करें? कोई इवेल्युएट करने का तरीका है आपके पास? ये चीज 2.6 के अंतर्गत है। इसके बाद जो लास्ट है 2.7 स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, ये क्वालिटेटिव का पार्ट नहीं है। ओके, तो यहां मैं इसको डील नहीं कर रहा हूं, ये जो है क्वांटिटेटिव का पार्ट है, तो इसको लेके मैं क्वांटिटेटिव में बात करूंगा। ओके, तो क्वालिटेटिव में ये आपने देखा 9 हैं। आप देखिए, कैटरिंग टू डाइवर्सिटी उसके अंतर्गत 1 था, टीचिंग लर्निंग के लिए 2 थे, फिर इवेल्युएशन प्रोसेस उसमें आपके 4 थे, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम उसमें 2 थे। तो टोटल मिला के ये 9 आउटकम्स जो है, 9 क्वालिटेटिव मैट्रिक्स हैं, जहां जब रिपोर्ट आप तैयार करते हैं तो ये क्वालिटेटिव मैट्रिक्स के अंतर्गत आते हैं, और इन सब का इवेल्युएशन, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नैक जब विजिट करती है तब वहां पर हमें देना पड़ता है। इसलिए इन सब के जो चीजें हैं वो उसमें रखनी चाहिए। नाउ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली पार्ट, जो क्वांटिटेटिव पार्ट है। कई बार क्या होता है, आपको पता है, ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि आपको पता है 70% जो मार्क्स हैं वो कॉलेज के द्वारा दिया गया डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है, जिसका वो वैलिडेशन करते हैं अपने थर्ड पार्टी से, उस पर डिपेंड करता है। नैक पीयर टीम के पास इवेल्युएट करने के लिए केवल 30% है। ओके, नैक पीयर टीम पहले 100% होता था हम लोगों के पास, अब कुछ नहीं, अब केवल 30% है। तो ये जो पार्ट है क्वांटिटेटिव वाला, ये पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन आपका गलत हो गया तो आपको 0 मिलेगा, और डॉक्यूमेंटेशन आपके सही है, जो नैक ने लिखा है, जो चाहता है, और वो आपने अगर प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट अटैच किया है, सर्टिफाइड प्रॉपर है, तो आपको अच्छे इसमें मार्क्स मिल जाते हैं। और ये बहुत बड़ा आपके ग्रेड को बढ़ाने में बड़ा सार्थक भूमिका निभाता है। तो क्वांटिटेटिव जो मैट्रिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स में मैं जो बात कर रहा हूं वो है 2.1 की। 2.1 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2.1 में ये है आपका स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल। 2.1 के अंतर्गत तीनों जो पॉइंट हैं इसके अंतर्गत, वो तीनों इसमें आपको क्वांटिटेटिवली डेटा अपलोड करना है। अब मैं एक एक करके बात करता हूं। पहला है 2.1.1, यानी ये स्टूडेंट एनरोलमेंट, जो छात्र आपके यहाँ जिन्होंने एनरोलमेंट कराया है उनका क्या प्रोफाइल है, उसके अंतर्गत 3 जो सब पॉइंट हैं, उन 3 सब पॉइंट्स का आपको डाटा अपलोड करना है। पहला है एवरेज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड कंट्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। पहला अपलोड करना है पिछले 5 वर्ष में एवरेज आपके जो छात्र हैं दूसरी राज्य से, दूसरे देश से कितने हैं, क्या परसेंटेज है, एवरेज परसेंटेज है। एवरेज परसेंटेज निकालेंगे आप पिछले 5 वर्षों का, और इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ेगा। माने आपको जो छात्रों का एनरोलमेंट है पिछले 5 वर्ष का, वो सर्टिफाई करके देना पड़ेगा कि कितने छात्र इसमें दूसरी स्टेट के थे। कोर्स वाइज निकलेगा, तब फिर टोटल निकल आएगा, उसका फिर एवरेज निकाल लेंगे आप, और उसके साथ साथ आपको दूसरी देश के कितने हैं, अगर कोई है तो। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम, वट एवर यू आर हैविंग यू हैव टू गिव द डेटा। देखिए, यू कैन नॉट क्रिएट द डेटा, आप डेटा क्रिएट नहीं कर सकते। आपके पास जो डेटा है भाई वही तो दोगे आप कहां से कोई बना दो थोड़ी दोगे। डेटा बनाने की कोई मशीन थोड़ी है कॉलेजों के पास या यूनिवर्सिटी के पास, डेटा बनाया हमने दे दिया है। तो डेटा बनाने वाली बात नहीं है, जो डेटा है, जो फैक्चुअल है, जो सही इंफॉर्मेशन है, वही हमें देनी है। जितनी है भाई, नहीं है तो हम क्या करें, किसी दूसरे स्टेट का नहीं तो हमारे पास नहीं है तो नहीं है, हम कहां से लाएंगे दूसरे स्टेट का। झूठी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, सही जो इंफॉर्मेशन है वही नहीं मिलेगा हमें मार्क्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, एवरेज एनरोलमेंट परसेंटेज, जो एवरेज एनरोलमेंट परसेंटेज कितनी है। ओके, ये एवरेज एनरोलमेंट परसेंटेज सैंक्शन ऑफ इनटेक किसके सीन है,
आपके यहाँ फॉर एग्जाम्पल बीए में सैंक्शन स्ट्रेंथ गवर्नमेंट के द्वारा मान लीजिए 100 है, तो वहां पर कितने लोगों ने एनरोलमेंट कराया, एवरेज निकालना है इसका। तो सैंक्शनड एडमिशन स्ट्रेंथ इन ईच प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में सैंक्शन स्ट्रेंथ आपको देखनी है ईच प्रोग्राम के बारे में, इसको आपको ध्यान देखना चाहिए। और ये क्या होगा, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव फॉर ईच प्रोग्राम, कितने लोगों ने उन प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशन दी और कितने लोगों ने एडमिशन लिया। तो एवरेज एनरोलमेंट कितने लोगों ने कराया उसकी परसेंटेज यहाँ देना जरूरी है सैंक्शन के अगेंस्ट। तीसरा पॉइंट इसमें है एवरेज परसेंटेज ऑफ सीट्स फिल्ड अगेंस्ट सीट्स रिजर्व फॉर वेरियस कैटेगरीज। ये लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का ही डेटा देना है इसमें भी, पहले में भी 5 साल का देना है, दूसरे में भी 5 साल का देना है, तीसरे में भी 5 साल का देना है। और इस 5 साल के डेटा में क्या बात करनी है आपको कि कितना जो रिजर्व कैटेगरी की जो पोस्ट है कितनी भरी गई। अब ये आपको लेटर स्टेट गवर्नमेंट और की सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लेटर्स हैं वो दिखाने पड़ेंगे, उनके रिजर्वेशन के लेटर्स क्या हैं। फिर आपको उन्हीं को रिजर्व कैटेगरीज में उन्हीं को शामिल करना है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड हैं। ओके, रिजर्वेशन जहां अप्लाई नहीं करता, बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस वगैरह में जहां मान लीजिए अप्लाई नहीं होता है, J&K रीजन में वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 100% प्रोवाइड एप्लीकेबल ऑर्डर्स, जो उसके लिए ऑर्डर लगे हुए गवर्नमेंट के ऑर्डर आप दिखा दीजिए कि बिकॉज आवर इंस्टीट्यूट इज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं लगता, या जहां जैसी स्थिति हो। तो रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर कितने बच्चों का रिजर्वेशन ने आपका एवरेज परसेंटेज उनका क्या है उसकी बात करेंगे। ओके, नाउ कम टू द 2.2 में आपने कैटरिंग टू स्टूडेंट डाइवर्सिटी 2.1 की बात हम वहां कर चुके हैं क्वालिटेटिव में, यहाँ क्वांटिटेटिव की बात करेंगे। तो 2.2 में स्टूडेंट, पहला है स्टूडेंट फुल टाइम टीचर रेशियो, या रेशियो की बात करते हैं। देखिए यहाँ आपको एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि फुल टाइम टीचर कौन है। हालांकि अगर आप नेक की वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पर उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ओके, एक वो टीचर जो 90% काम के अपने नॉर्मल आवर्स को पूरा करता है, 90%, है ना, वो आपका फुल टाइम टीचर है, उसको आप फुल टाइम टीचर मानेंगे। कई जगह आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है 11 महीने के लिए 12 महीने के लिए करती है, लेकिन वो 90% टीचिंग लोड लेते हैं, तो वो भी टीचिंग में शामिल होंगे, मेरा अपना ये मानना है। ओके, वहां कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि उसको क्या पे मिलती है क्या नहीं मिला, उसमें कहीं नहीं लिखा, नॉर्मल स्टूडेंट और टीचर का रेशियो देखना है। तो एक वो टीचर जो 90% वर्कलोड को शेयर करता हो उसको यहाँ पर आपको जिक्र करना है, उस रेशियो को बताना है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का रेशियो क्या है। नाउ कम टू द, इसमें केवल कैटरिंग 2 में ये दोनों चीजें हैं। दूसरा और है इसमें 2.2.3 में परसेंटेज ऑफ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स ऑन रोल्स, जो ऐसे दिव्यांगजन, डिफरेंटली एबल्ड को दिव्यांगजन ही कहेंगे ना शायद, है ना, क्यों शुक्ला जी? जी जी जी, दिव्यांग ही कहेंगे सर, दिव्यांग ही कहते हैं। तो वो जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे आपके कितने हैं, परसेंटेज उनकी क्या है, और वो करेंट ईयर की बात करेंगे, वो 5 साल की नहीं है। इस साल आपके पास दिव्यांग जनों का परसेंटेज कितना है। ओके, अब आप ये ध्यान रखिए, दिव्यांग जन है तो कॉलेज में दिव्यांग जन के लिए फिर आगे कहीं आपको जिक्र करना पड़ेगा, वहाँ फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर में वो है या नहीं है, वो भी आप ध्यान रखिए, वहां पर आपको उससे मैच करना चाहिए, है नहीं है तो क्यों नहीं है। नई, अब तो गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जितनी भी नई बिल्डिंग बनेंगी वो सब डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली होंगी, है ना, रैंप्स भी होंगे और चीज भी होंगी, लाइब्रेरी में आपके पास उनके लिए सुविधा है नहीं है, क्लासरूम्स उनके प्रॉपर हैं या नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है, यहाँ पर केवल परसेंटेज की बात करनी है। Then come to the 2.3 टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर आप आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसमें 2.3.2 एवरेज परसेंटेज ऑफ टीचर्स यूजिंग ICT फॉर इफेक्टिव टीचिंग विद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए आजकल तो सभी ले रहे हैं भाई, कोविड-19 पेंडेमिक ने तो
ऐसा हो गया है कि 100% टीचर जो है आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, अब ये बात अलग है कि वो आईसीटी जो है लड़कों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। ओके, बट आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट ऑन दैट। बट नाउ जो लोग कभी पीपीटी बनाना नहीं जानते थे, सीखा ही नहीं था, बार बार नेक कहती थी कि बनाओ 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 बनाओ, फिर भी नहीं बनाते थे, हैं मुझ जैसे लोग, मैं भी नहीं बनाता था। ओके, तो ये इस पीरियड ने ये जरूर कर दिया, सबको कंपेल कर दिया, और लोगों ने सीखा और लोगों ने बनाया है। लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे अनेक प्लेटफॉर्म्स अपने अपने तरीके से डेवलप किए हैं, और वो यहाँ पर जो ये बड़ा फायदा मिलेगा नेक में, जो लोग हैं इसमें सब सीख गए हैं, सब लोग बनाना जान गए। जिनके पास कंप्यूटर नहीं थे उन्होंने भी कंप्यूटर ले लिया। कॉलेज तो मैं जानता हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस की हालत के उतने पैसे तो मिलते नहीं क्या सबको गवर्नमेंट कॉलेज इतने फंड दे सके कि कंप्यूटर खरीद ले, ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन लोगों ने खरीदे हैं। तो एवरेज आईसीटी फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए यहाँ पर क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं आपके, देन पावर पॉइंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, कौन से सर्च इंजिन आप यूज करते हैं। तो और दूसरा ये मैंने एक और बताया आपको, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जो एजुकेशन के लोग हैं वो ज्यादा जानते होंगे, साइकोलॉजी वाले भी जानते होंगे। मैं इसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है ये, जो क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट एंड मैनेज द डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कंटेंट। ये क्या करता है, नॉलेज को क्रिएट भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और मैनेज भी करता है। तो LMS इज ए सॉफ्टवेयर, और आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये एनहेंस करती है हमारी जो आईसीटी। मैं हमेशा ये मानता हूं कि आईसीटी जो क्या है ना, एक सपोर्ट है। आईसीटी फुल्ली, आप आईसीटी के माध्यम से आप टीचिंग नहीं कर सकते हैं, और मैं उसका सपोर्ट भी नहीं करता हूं कभी भी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये एक सपोर्ट सिस्टम है हमारे लिए। लेकिन इस समय तो सारा का सारा 100% हम आईसीटी बेस्ड ही टीचिंग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में सारे लोग कर रहे हैं। जो हमारी तरीका है, तो इसमें आपको बात करनी है कि एवरेज परसेंटेज टीचर्स आईसीटी कितने यूज कर रहे हैं। अब तो 100% कर रहे हैं, राइट। अगर कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने कुछ लिया है तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। मेंटर, देखिए यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, कई बार कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हम लोग लिख देते हैं कि मेंटर हम हैं। ओके, अब यहाँ तो ये कॉलेज मेंटर है, ये तो यूजीसी ने बना दिया है, राइट, परामर्श के अंतर्गत टीआरएस को मेंटर बना दिया, ऑफिशियल है, लेटर है, आप काम कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम कॉलेजेस में क्या करते हैं, फर्जी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, कहाँ हम मेंटर हैं, 10 लड़कों का हम मेंटरिंग करते हैं, रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, राइट। अब वो कहेंगे कि कैसे मेंटर करते हो, आते हैं वो पूछते हैं, हम बता देते हैं उनको। दिस इज नॉट मेंटरिंग। मेंटरिंग जो है क्या होता है कि आपके पास ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए, उसकी एक रजिस्टर या डायरी आप बनाएं कि भाई कौन लड़का आपके पास आया। ओके, और वो दोनों तरह मेंटर, आप दो तरीके से यहाँ पर देखिए, मेंटर फॉर दोनों तरह की मेंटरिंग करते हैं, करने के लिए डिब्यूट करते हैं। अब मैं उस इश्यू पे नहीं जा रहा, आपको देखिए होता क्या है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो मैं बाद में थोड़ा सा बात करूंगा कि सिचुएशन नॉट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, इवन इन द यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, टीचर्स इतने ओवरलोडेड हैं काम से कि किसकी मेंटरिंग करेंगे, वो कैसे करेंगे मेंटरिंग। अब मान लीजिए मैं उत्तराखंड में देखता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में एक टीचर है, समझे, पूरे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में मालूम पड़ा कि एक टीचर है, दूसरे सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं है, 100 लड़कों की कहां से मेंटरिंग करेगा, हाउ कैन इट पॉसिबल। यार ये इशू नहीं है हमारा, हम उस चीज में नहीं जाते, हमें तो यहाँ फोकस करना है कि भैया मेंटरिंग करनी है, और मेंटरिंग कैसे करनी है उसको एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमको रखना है। और मेंटरिंग में एकेडमिक मेंटरिंग भी है और स्ट्रेस मेंटरिंग भी है। बहुत सारे, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स एक्चुअली स्ट्रेस के अंतर्गत, और आजकल तो बहुत ज्यादा है स्ट्रेस और एंजाइटी। अब तो मुझे लग रहा है कि टीचर्स की भी मेंटरिंग की जरूरत है, टीचर्स भी सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है, और फैमिली स्ट्रेस में है, बच्चे स्ट्रेस में, एवरीबॉडी इज अंडर स्ट्रेस, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, लोनलीनेस है, बिकॉज इस पेंडेमिक सिचुएशन ने बहुत ज्यादा लोगों को, क्योंकि आप किसी से मिल नहीं रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं,
कम से कम फॉर्चुनेटली या शुक्ला जी ने हमको कम से कम इंटरेक्शन करने का मौका तो दे दिया, लोगों की शक्ल सूरत तो दिखाई दे रही है, वरना इससे भी तरस गए लोगों से लिए है। तो ये स्ट्रेस को कम करता है। हम तो सोशियोलॉजी के आदमी हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत जरूरी है, आदमी बिना मिले रह नहीं सकता है। तो इस सिचुएशन में तो यहाँ पर टीचर और उसकी जो मेंटर की बात की गई है, क्या रेशियो है मेंटर का, ये रेशियो की बात करता है। अनदर पॉइंट नेक्स्ट जो आता है, अगला जो बिंदु है वो टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी। टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी में सारे के सारे बिंदु क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अंतर्गत जितने हैं ना वो सारे क्वांटिटेटिव में ही आपको बात करनी पड़ेगी। इसमें 2.4.1 है एवरेज परसेंटेज ऑफ फुल टाइम टीचर्स अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट ड्यूरिंग लास्ट 5 years। पिछले 5 साल में आपके पास कितने टीचर्स हैं अगेंस्ट दी सैंक्शन पोस्ट। सैंक्शन पोस्ट कितनी है, काम कितने लोग कर रहे हैं। काम करने में मैंने पहले कहा वो रेगुलर टीचर की बात करते हैं, और रेगुलर टीचर में वही है जो 90 आवर को पूरा करता है। वो 5 साल में आपका एवरेज परसेंटेज यहाँ पर निकालना होता है। दूसरा 2.4.2 एवरेज परसेंटेज ऑफ फुल टाइम टीचर्स दोज हु आर हैविंग पीएचडी। लास्ट 5 साल में कितने लोग पीएचडी हैं, कितने टीचर्स आपके पीएचडी होल्डर हैं। ये दूसरा इसका पॉइंट है 2.4.2 का। 2.4.3 में एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस, कितना टीचर एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं, कितना उनका एवरेज क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स इन ए नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने लोगों को एक्सपीरियंस्ड है, कोई 4 साल 5 साल, तो उसका एवरेज निकाला जाता है। तो एवरेज निकालने के बाद आप लिखेंगे कि इतने हमारे पास एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। 2.4.4 में एवरेज परसेंटेज ऑफ फुल टाइम टीचर्स हु रिसीव्ड अवार्ड्स। देखिए ये बड़ा अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, फेलोशिप, इस चीज को ध्यान रखिए किस तरह के अवार्ड्स की बात करते हैं। ओके, कई बार क्या होता है ना, लाइंस क्रिम ने मुझे वैसे ही दे दिया बुला करके अवार्ड, उसको मैंने लिख दिया है। किसी ने मान लीजिए पंचायत ने बुला के दे दिया, किसी एनजीओ ने दे दिया, ये नहीं है। अवार्ड्स देखिए 2 तरह के होते हैं, एक सोशल सर्विस में रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड्स किसी ने दिया है, दैट इज डिफरेंट। अनदर वन एकेडमिक फील्ड में आपके अवार्ड्स क्या है, रिकॉग्निशन क्या है, फेलोशिप क्या है, आपकी प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा जो फेलोशिप दी जाती हैं, चाहे वो इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी हो या और आपकी इंडियन साइंस एकेडमी हो, या प्रोफेशनल बॉडीज हैं, इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है, इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन है, किसी भी जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनके द्वारा आपको कोई अवार्ड, कोई रिकॉग्निशन मिली हो, फेलोशिप्स आपको मिली हो, बाहर की कोई भी फेलोशिप जो मिली है स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, ये तीनों लेवल पर लास्ट और ड्यूरिंग लास्ट 5 years। अब एक व्यक्ति को 1 साल में अगर 2 फेलोशिप मिल गई या 2 अवार्ड मिल गए तो उसका एक ही काउंट होगा, ये भी ध्यान रखिए, उसके 2 काउंट नहीं होंगे। ये 1 वर्ष में एक ही काउंट होगा, जो भी उसका बड़ा अवार्ड है वो उसको वहां जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर अवार्ड्स की बात की गई है, तो अवार्ड्स में आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। जितने आप अवार्ड दिखा रहे हो कि हमारे 10 लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तो भाई राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो राष्ट्रपति वाला लगाइएगा आप, उसमें कहा राज्य ने अगर कोई पुरस्कार दिया है, बेस्ट टीचर अवार्ड। अब इधर नेक ने क्या किया है, बहुत सारे राज्यों ने बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड घोषित कर दिए हैं, बेस्ट टीचर अवार्ड घोषित किए हुए हैं, वो है, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो उसके साथ अपलोड आपको करना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव जो मैट्रिक्स है उसमें हर जितने भी ये पॉइंट्स में बता रहा हूं, हर एक में सर्टिफिकेट चाहिए, सब में आपको अपलोड करना है, सब में आपको लगाना पड़ेगा कि ये आपके पास सर्टिफिकेट है, ये हम लगा रहे हैं। उतने 10 का लिख रहे हो तो 10 के लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज वो वैलिडेशन नहीं होगा। जितना वैलिडेशन होगा फिर उतना ही वो काउंट करेंगे। एक और है एवरेज परसेंटेज ऑफ फुल टाइम टीचर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। ये 2.4.5 में ये है कि जो सैंक्शन पोस्ट हैं उनमें आपके यहाँ जो कार्यरत टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है, वो कितनी दूसरी राज्यों से आई हुई है। यहां पर एक ट्रिक हो जाती है, मैं आपको बताऊं ट्रिक क्या है। दूसरे राज्य से भले ही ना आई हो, अगर दूसरे राज्य से उसने पीएचडी की है तो उसको यहाँ काउंट कर लेते हैं। दूसरे राज्य से एमए की है उसको भी काउंट कर लेते हैं हम। यहाँ एमए नेट है
वी विल काउंट, भले ही वो मध्य प्रदेश है लेकिन एमए उसने बनारस से करके आया या कहीं और से किया, पीएचडी उसने दूसरे स्टेट से की, तो वहां पर वो सर्टिफिकेट उसका होता है तो वो यहाँ पर काउंट हो जाता है। तो 2.4.5 में एवरेज परसेंटेज ऑफ फुल टाइम टीचर्स की हम बात करते हैं। तो ये आपका टीचर्स का प्रोफाइल की यहाँ पर बात है। 2.6 में स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम, यहाँ पर केवल एक बिंदु है जिसमें क्वांटिटेटिव में आपको बात करनी है। 2.6.3 में आपको बात करनी है एवरेज पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, आपके छात्रों की एवरेज पास परसेंटेज क्या है। यहाँ आप बता सकते हैं आपके छात्रों को पोजीशन मिली हुई है, एवरेज पास परसेंटेज, यहाँ पर उन चीजों का भी जिक्र कर सकते हैं कि हाउ मेनी आपके पर्टिकुलर क्लास में यूनिवर्सिटी में किसी को फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन मिली हो, एवरेज पास परसेंटेज फॉर एग्जांपल बीए में कितने परसेंटेज पास हुए, बीएससी में कितने पास परसेंटेज हुए, हम एमए में कितने हुए, अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप निकाल सकते हैं, कोर्स वाइज निकाल सकते हैं। तो एवरेज पास परसेंटेज का जिक्र यहाँ पर है, लेकिन वो जो आपका रिजल्ट है दैट शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करके उस सर्टिफिकेट उसको वहां पर लगाना होगा। तो ये क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स के जो हिस्से थे सारे इसमें पूरे कवर हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ये 14 मैट्रिक्स है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। इसमें स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल के अंतर्गत 3 थे, 1 2 3, ओके। कैटरिंग टू स्टूडेंट डाइवर्सिटी के अंतर्गत 2 थे। फिर आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपके इसमें भी आपके 2 थे। टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी में 2 और 2 4 और 1 5 थे। देन आपके स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम में 1 था। और लास्ट वाला जो है इसमें वो है 2.7, जो कि क्वांटिटेटिव आपको लिखना नहीं है, बट ये क्वांटिटेटिव इस सेंस में है कि ये स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे है। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे आपके कॉलेज में टोटल जो स्टूडेंट का एनरोलमेंट है उसका 10% या 100 विच एवर इज लेस, जो भी कम हो उसको शामिल किया जाता है। टोटल लिस्ट आप छात्रों की देते हैं, उसमें उनके अब तो सबके मेल आईडी है और इसने मेल आईडी और मोबाइल यूज कर दिया है। मेल आईडी और मोबाइल की बातें दोनों इस समय हुई हैं। अब मेल आईडी और मोबाइल, क्योंकि आपने देखा कि इस समय जो ऑनलाइन टीचिंग हुई है तो सभी स्टूडेंट्स की अब तो हम जनरेट करते हैं, वैसे भी एडमिशन के टाइम पर भी दोनों चीजों को हम ले लेते हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ना गलत आईडी वगैरह दे देते हैं, तो इसको अवॉइड करते हुए हमें ये देखना चाहिए कि उनकी सही आईडी और मोबाइल नंबर हो। और ये इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे में। एक सब्जेक्टिव होता है, छात्रों को ही उत्तर देने होते हैं, ठीक है, और इनको थोड़ा सा पहले से आपको गाइड करना होता है, वरना छात्र जो है ना इसमें वो छात्र भी शामिल हो जाते हैं कई बार जो कभी क्लास में नहीं आते, ध्यान रखिए, है ना। और वो खूब उल्टा सीधा लिखेंगे टीचर्स के बारे में। उनको पता लग जाए कि कोई गवर्नमेंट बॉडी सर्वे कर रही है तो वैसे कभी क्लास में नहीं आएंगे, लेकिन उस समय सर्वे के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं और वो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं बिल्कुल। और वो बहुत सारी जगह हमने देखा है कि टीचर्स के बारे में, कॉलेज के बारे में नेगेटिव बातें ज्यादा लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है, मैंने बताया नहीं 20 ऑब्जेक्टिव है, उसमें तो यस ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब देना है, एक सब्जेक्टिव भी है, और वो सब भेजा जाता है कॉलेज को। जो आती है रिपोर्ट ना उसके पास भेज दिया जाता है, जो एसएसआर हम लोगों को आती है पीयर टीम के पास, उनके पास भी रहता है कि क्या क्या इन्होंने लिखा है लोगों के लिए। तो इसमें जो करेंटली एनरोल्ड स्टूडेंट्स है उसका डेटा आपको अपलोड करना है, और इसमें नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, और ये 30 दिन के भीतर कंप्लीट हो जाने चाहिए सर्वे, क्योंकि आपका जो सबमिट वहां होता है, वैलिडेशन वहां हो रहा है, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो जाती है। जब ये कंप्लीट हो जाता है और इसमें उनको उन्होंने तय कर रखा है कितने परसेंटेज जवाब मिल जाते हैं तब, और वैलिडेशन आपके सारी चीजों का हो जाता है। कई बार वैलिडेशन नहीं होता तो देन वो आपके पास फिर भेजते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लगाया है, आप इसको दोबारा से बताइए
जितने भी मैंने आपको ये क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव पे वो बात नहीं करेंगे, क्वांटिटेटिव जितना डेटा है, क्वांटिटेटिवली जितनी मैट्रिक्स है, एक एक पॉइंट के बारे में जो डेटा आपसे मांगा गया था वो सब आपसे पूछेंगे। जितनी चीजें आपसे पूछी गई थी ना, ये क्वालिटेटिव में आपने देखा एवरेज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दूसरी स्टेट के कितने हैं। अब आपको आपने सर्टिफाई करके अगर नहीं दिया है, अपलोड अगर नहीं किया है, तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरा, जैसे आपने देखा 2.1.2 में एवरेज एनरोलमेंट परसेंटेज कितना है, वो आपको प्रिंसिपल से वेरीफाई करके कितना एनरोल हुआ है वो सब डॉक्यूमेंटेशन में पूरा लगाना पड़ेगा आपको। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स का अवार्ड हो, पीएचडी हो, अदर स्टेट का हो, मेंटर की बात हो, चाहे आपके आईसीटी की बात हो, आपको बताना पड़ेगा कि कितने हमारे पास लैपटॉप्स हैं, कितने कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर लैब कितनी है, कनेक्टिविटी कितनी है, वेबसाइट में हॉटस्पॉट कितने हैं, बच्चों को आपने कितना दे रखा है, टीचर्स को कितना दे रखा है, कहाँ कहाँ वो अवेलेबल है, कहाँ कहाँ नहीं है। ये आईसीटी कैसे यूज करेगा आदमी, until unless he is not having that connectivity। ये बात अलग है कि ऑल द टीचर्स आर हैविंग नाउ देयर, उनके पास अपनी, सबके पास वाईफाई फैसिलिटी है, लेकिन कॉलेज ने क्या किया है ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सब अपलोड करना पड़ेगा। तो ये दो पार्ट इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक तो क्वांटिटेटिव में एवरी डाटा सर्टिफाइड वे में आपको अपलोड करना है। अगर आप अपलोड नहीं करते, आपको पता है कि नैक अब थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराता है, उसको थर्ड पार्टी के पास भेजता है और थर्ड पार्टी से फिर उनके पास आता है, देन दे विल सेंड यू कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक नहीं है, ये चीजें गलत, देन यू अगेन आप उसको अपलोड करिए, उसके लिए वो टाइम देते हैं, आप फिर उसको सबमिट करिए, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटिटेटिव डेटा के आधार पर ही आपके 70% उसी आधार पर वैल्यूएशन होना है। केवल जो पीयर टीम के पास केवल 30% का इवैल्यूएशन इसमें रहता है। तो हमको इसको बहुत सीरियसली देखना होगा। अब मैं आपको कुछ और चीजें थोड़ी सी जनरल वे में बताऊं आपको कि देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा कि यू कैन नॉट क्रिएट, आप कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेटा क्रिएट नहीं किया जाता है। डेटा तो जो है आपके पास उसको सुरक्षित रखना चाहिए, और जब डेटा आप सुरक्षित रखेंगे, इसमें आपको दो चीजें और हर कॉलेज कर रहा होगा। एक तो AAA एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट। ये कई बार क्या होता है, जो मेरा अपना ये मानना है, देखिए हम अपनी वीकनेसेस को खुद नहीं समझ पाते कई बार, है ना, एज ए टीचर भी नहीं समझ पाते हैं। तो एक बाहर का कोई व्यक्ति एक्सपर्ट के रूप में अगर आप इंटरनली इवेल्युएट करेंगे तो वो तो ये होगा कि शुक्ला जी मेरी तारीफ लिखेंगे और मैं शुक्ला जी की लिखूंगा, हाँ, तो इम्प्रूव ना शुक्ला जी करेंगे ना मैं करूंगा, क्योंकि एक दूसरे की तारीफ में अगर आप लिख रहे हैं तो फिर वो चीज तो नहीं हो पाएगी ना। लेकिन कई बार मैं आपको एक शेयर करता हूँ एक एग्जांपल। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज कालीकट में हम रिव्यू कर रहे थे लॉन्ग बैक, तो वहां पर जब छात्रों से हम इंटरेक्शन कर रहे थे तो हमने उनसे बहुत सारे, हमने टीचर्स और जो लोग थे एकेडमिक स्टाफ कॉलेज उनको हटा दिया, बाहर कर दिया। तो वी वर जस्ट आस्किंग देम, तो उन्होंने, छात्रों ने जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के रिव्यू में जो लोग आते थे उनका एक वीडियो बना रखा था। ओके, तो वो जो है वीडियो उन्होंने हमें दिखाया और उन्होंने अपने शेयर किए जो बैच जो चल रहा था। तो उन्होंने कहा सर देखिए ऐसा है कि कई बार कुछ टीचर्स ना पर्टिकुलर क्लास में एक ही जगह फोकस करते हैं, दे विल फोकस ओनली ऑन वन स्टूडेंट, दूसरी जगह फोकस नहीं करते, कई बार जेब में हाथ जो है रखे रहते हैं। तो ये क्या होता है ना, हम जानबूझ के नहीं करते एज ए टीचर, उसकी आदत हो जाती है कई बार। तो इसके बारे में अगर खुद कहोगे, आप कहोगे तो वो नाराज हो जाएगा। लेकिन ये कुछ चीजें होती हैं, स्टूडेंट बहुत बड़ा ऑब्जर्वेंट होता है, हमारी हर गतिविधि को ऑब्जर्व करता है, हर चीज पर वो ध्यान रखता है, और इसलिए बहुत सोच समझ के ही हमें बात। देखिए कई बार क्या होता है, गलत टीचर का काम क्या है, एज ए टीचर मैंने हमेशा ये महसूस किया है, हमको हर चीज नहीं आती और हमें क्लेम भी नहीं करना चाहिए कि हम चीज आती है। कई बार हमें स्टूडेंट हमसे ज्यादा जानता है, लेकिन टीचर का काम यह है कि जो चीज टीचर स्टूडेंट हमसे पूछ रहा है और वो उस दिन हम नहीं बता सकते, तो मुझे बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए और मुझे अगले दिन तैयार होकर के आना चाहिए कि यस आई विल टेल यू, आई विल शेयर विद यू। ये मेरा काम है टीचर का।
हर चीज थोड़ी आप एकदम से तैयार होकर के बैठे हुए हैं कि हर चीज आप जानते हैं और पूरे आपको हर सब कुछ याद होगा, नॉट पॉसिबल, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमें उस चीज ध्यान रखना चाहिए। तो वो फीडबैक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे कहा ट्रिपल ए का जो है एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट, ये हमें साल में एक बार एटलीस्ट कराना चाहिए। और इसमें हमें बाहर का एक आदमी रखना चाहिए, क्योंकि और वो व्यक्ति जिसको एक्सपीरियंस्ड हो, जो बाइस्ड न हो, जो कॉलेज के प्रति किसी तरह से बाइस्ड न हो, और उसके सुझाव से हम बहुत कुछ चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, एकेडमिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट भी होता है और एकेडमिक ऑडिट भी हमें करना होता है। तो दोनों तरह के ऑडिट ईयरली हो और वो कम्युनिकेट भी होने चाहिए। उनको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल एक मेमो इशू कर दे तो बेचारे की सीआर खराब हो जाएगी उसकी। तो मेमो इशू करोगे, उसकी सीआर में जुड़वा दोगे, उसका प्रमोशन नहीं होगा, उसका ट्रांसफर हो जाएगा। नो, बी ऑल आर टीचर्स, है ना। टीचर जो है देखिए बहुत सेंसिटिव होता है, तो उस सेंसिटिविटी को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि बुला करके अकेले में हम बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि भाई देखो ये कुछ तुम्हारे बारे में ऐसा छात्र जो है शिकायत नहीं, उन्होंने ये सुझाव दिए हैं, तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ट्रिपल ए एकेडमिक एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव